اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وسلام علی نبی المصطفیٰ وعلی آلہ انقا واتقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین حضرات، آج 3 رمضان المبارک ہے۔ یہ مقدس دن سیدہ کائنات ام ابیہا سیدہ طیبہ عابدہ راضیہ مرضیہ طاہرہ البتول جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا الصدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہے۔ اس مبارک یوم کے نسبت سے ہم آپ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ حضرت علامہ اقبال کے اس فارسی مجموعہ کلام میں رموز بے خودی سے یہ مشہور زمانہ کلام علامہ اقبال کا جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت یہ کلام لکھا ہے اور پوری نظم فارسی کے اندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سماعت فرمائیے۔ در معنی کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا اسوہ کاملہ ایست برائے نساء اسلام۔ اس معنی میں کہ سیدۃ النساء یعنی تمام عورتوں کی سردارنی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا اسوہ کاملہ، جو کہ تمام عالم اسلام کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتے ہیں کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بزرگ پیغمبر، صاحب وحی، صاحب کتاب، صاحب امت، جلیل القدر رسول، ان کی والدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مریم علیہ السلام، ان کی ایک نسبت ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے، جس کی وجہ سے یہ بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور عزیز ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ جناب سیدہ کائنات 3 نسبتوں کی بنیاد پر باری تعالیٰ کے حضور بزرگ تر ہیں اور مقرب ہیں اور عزیز ہیں۔ وہ 3 نسبتیں اقبال نے کیا خوب گنوائی ہیں۔ شاعر مشرق علامہ اقبال لکھتے ہیں، پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی نسبت جناب سیدہ کی، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ وہ جناب سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں، ان کے نور چشم ہیں، ان کی شہزادی ہیں۔ کے جاں در پہ کرے گیتی دمید، روزگار تازہ آئین آفرید۔ وہ سرور کونین، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اس پورے عالم کو ایک نئی جان بخشی اور اس عالم میں ایک نئی شریعت، اس عالم میں ایک نیا انقلاب برپا کیا، تمام عالم انسانیت کے لیے ایک نیا پیغام، ایک نئی خوش آئین پیش کی، جس سے کہ عالم انسانیت میں، عالم اجنہ میں، عالم ملائک میں ایک انقلاب برپا ہوا۔ یہ ان کی نور چشم سید الاولین والآخرین ہیں۔ یہ پہلی نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب فاطمۃ الزہرا کو۔ دوسری نسبت، بانوائے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اور وہ زوجہ محترمہ ہیں، بیوی ہیں، اہلیہ ہیں
ताजदार हल अता की, वो मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। ताजदार हल अता, यहाँ इकबाल ने कुरान मजीद की उस आयत की तरफ इशारा फरमाया जो सूरत दाहर में है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत मुबारका है, हल अता अलल इंसानी हीनु मिनद दहरि लम यकुन शैअम मज़कूरा। यानी इंसान पर, बनी नौए इंसानियत, बनी नौए इंसान, बनी आदम पर ऐसा वक्त गुजरा है कि जब वो कोई काबिले मज़कूर शय न थी, कोई जिक्र के लायक चीज न थी, फिर अल्लाह ताला ने इसे अपना नायब व खलीफा और जानशीन बनाया, इसको एक हस्ती बख्शी, इसको पैकरे इंसान में, इसको लिबास इंसान में पेश किया दुनिया के सामने। तो ये वो शख्सियत है मौलाए कायनात जो हल अता के सरदार है, यानी जो तमाम नौए इंसानी बने, नौए इंसानी की जो इंसानी शक्ल में है, उन तमाम इंसानी शक्ल वालों के, उन तमाम इंसानों के, बनी नौ इंसान के मौलाए कायनात ताजदार हैं, हल अता के मालिक हैं। उनकी ये ज़ौजा मोहतरमा है जनाब सैयदा बादशाह है वो कलबाए ईवान ऊ, बादशाह वो कलबाए ईवान ऊ, यक हुसाम यक जर्रा सामान ऊ। वो ऐसे बादशाह हैं मौलाए कायनात हैदर कर्रार अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम कि उनका ईवान, उनकी इमारत, उनकी पैसर और उनका जो शाही महल है वो एक झोपड़ी है फकत। वो बादशाह ऐसे हैं कि एक झोपड़ी रखते हैं, एक तलवार रखते हैं और एक जर्रा रखते हैं। ये उनका कुल जिंदगी का सामान है जो उन्होंने कमाया। एक झोपड़ी, एक तलवार, एक जर्रा, ये उस बादशाह की मौलाए कायनात का पूरा सरमाया सामान है। आगे फरमाते ये दूसरी निस्बत है। तीसरी निस्बत मादरे आ मरकजे पुरकार इश्क, मादरे आ कारवां सालार इश्क। ये उनकी मादर हैं जो पुरकार इश्क हैं, जो इश्क से सरशार हैं। उनकी मादर हैं जो कारवां सालार इश्क हैं। एक बंद में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम मुराद हैं, दूसरे बंद में हजरत इमाम हुसैन शहीद अलैहिस्सलाम मुराद हैं। यानी इमाम हसन मुज्तबा पुरकार इश्क हैं, सरतपा इश्क हैं, इश्क खुदा में गर्क हैं। और एक उनकी माँ है कि जो आशिकों के काफिला सालार हैं, उशाक के काफिला सालार, हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम। यके शमे शबिस्तान हरम हाफिजे जमीयते खैरुल उमम। एक हसन वो हैं इमाम हसन अल मुज्तबा जो शमे शबिस्तान हरम हैं, यानी हरम के शबिस्तान की शमा हैं, और हाफिजे जमीयते खैरुल उमम, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की इज्तिमाइयत और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने वाली शख्सियत का नाम इमाम हसन अल मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। ये जो शेर लिखा है इकबाल ने, ये इसकी तरफ इशारा है जो हदीस मुबारका है सहीहैन में, इन्ना इब्ने हाजा सय्यदुन लअल्लाह अन युस्लिहा बैन फियतैन अजीमतैन मिनल मुस्लिमीन। ये मेरा बेटा सैयद, जब हुजूर सलाम ने आपको देखा, इमाम हसन को मस्जिद नबी में इरशाद फरमाए, ये मेरा बेटा सैयद, गोद में बिठा कर फरमाया ये वाक़े पजीर होने से पहले कि मेरा बेटा सैयद दो अजीम मुसलमानों के गिरोह के दरमियान जो झगड़ पड़ेंगे उनके दरमियान सुलह कराएगा। तो ये सुलह इमाम हसन जो माविया के साथ सुलह हुई, ये उसकी तरफ इशारा है कि किस वजह से हुई सुलह, किस वजह से की इमाम हसन ने, हाफिजे जमीयते खैरुल उमम, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की इज्तिमाइयत के खातिर। आगे फरमाते हैं ता नशीनत आतिशे पैकारोली पुश्त पाजद बरसरे ताजो नगी, के ताके झगड़ा जो हो रहा था
लड़ाई और फसादात, जंग व जदाल का जो माहौल कर दिया था अमीर शाम ने, उसमें इमाम हसन ने पुष्ट पाजत बरसरे ताजो नगी, पैरों से ठोकर मार दी ताजदारी को, ताजवरी को, बादशाहत को, हुकूमत को, खजानों को, बैतुल माल को, तमाम तरह की दुनियावी लज्जात और आराइश और तमाम तरह की दुनियावी ख्वाहिशात को और तमाम दुनियावी सरो सामान को इमाम हसन मुश्तबा ने लात मार दी। पुष्ट पाजद बरसरे ताजो नगी, ये तीसरी निस्बत थी। आगे इसके तशरीह फरमाते हैं इन पूरे अशार की जनाब सैयदा की शान में, वहाँ दीगर मौलाए अबरारे जहां क़ुव्वते बाजुए अहरारे जहां। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो मौलाए अबरारे जहां हैं, तमाम नेकोकारों के, जहां के तमाम नेकोकारों के मौला हैं, इमाम हैं, मुक्तदा हैं, क़ुव्वते बाजुए अहरारे जहां, और तमाम अल्लाह के आज़ाद बंदों के वो क़ुव्वते बाजू हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। दर नवाए जिंदगी सोज अज हुसैन, अहले हक हुर्रियत आमूज अज हुसैन। इस जिंदगी में जो सोज व गुदाज है ये हुसैन इब्ने अली से इकबाल कहते हैं। ये क्यों है कि अहले हक हुर्रियत आमूज अज हुसैन, अहले हक तो आज़ादी सीखते ही हुसैन इब्ने अली से हैं, अहले हक आज़ादी सीखते हुसैन इब्ने अली से। सीरते फरजंदाह अज उम्महात, जौहरे सिद्क़ को सफ़ा अज उम्महात। बच्चों के जो किरदार होते हैं, उनकी सीरतें होती हैं, उनकी वालिदा की वजह से होती हैं। बच्चों को देखकर समझ में आता है कि वालिदैन कैसे होंगे इनके। जौहरे सिद्क़ को सफ़ा अज उम्महात, ये जो बच्चों के अंदर जौहरे सिद्क़ को सफ़ा पैदा होता है, नेकी का, तकवे का, अल्लाह ताला से खौफ व खशियत का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी का, ये माओ के सिखाने से होता है, माओ की निस्बत से होता है। मजराए तस्लीम रा हासिल बतूल, मादरे रा उसवाए कामिल बतूल। तस्लीम और रजा का जो पैकर है वो जनाब सैयदा कायनात बतूल सलामुल्लाहि अलैहा है। मादरा रा उसवाए कामिल बतूल, रहती दुनिया तक जितनी नेकोकार माएँ हैं उनके लिए उसवाए हसना बतूल का है, जनाब सैयदा का। उन्हें सीखना चाहिए जनाब सैयदा से कि जब वो बेटी थी तो उन्होंने कैसा किरदार निभाया, जब वो बीवी थी तो कैसा किरदार निभाया, जब वो माँ हैं तो कैसा किरदार निभाया। हर रोल मॉडल के अंदर में आपने उसवाए हसना दिया उम्मत को, और तमाम औरतों की सरदारनी आपको इसी वजह से ये लक़ब हासिल हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये जो उसवा हसना की इज्तिमाइयत आपके अंदर है वो 3 निस्बतों की वजह से, जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक निस्बत से है। आगे फरमाते हैं, बहरे मोहताज दिलश आ गुना सोख्त, बा यहूदे चादरे खुदरा फरोख्त। अरे इनके दिल इस कदर नरम थे अहले बैत अतहार के, और बिलखुसूस जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के इनका दिल इस कदर लोगों के लिए धड़कता था, दर्द रखता था इंसानियत के लिए, कि जब यहूदी जो खुला दुश्मन इस्लाम है, और वो भी हुजूर इस्लाम के ज़माने का यहूदी जब बिल्कुल बरसरे पैकर है, उनको जब देखा कि सही हालत में नहीं है, फ़कीरी में है, मोहताजगी के आलम में एक यहूदी है, तो उसको अपनी चादर फरोख्त कर दी। ये जनाब सैयदा का उसवा है। नूरी ओ हम आतिश फरमा बरश, नूरी ओ हम आतिशी फरमा बरश, गुम रजाश दर रजाए शोहरश। चाहे नूरी जिन्स हो चाहे आतिशी जिन्स हो, सब उनके फरमा बरदार हैं। चाहे फरिश्ते हो चाहे अजिन्ना हो या चाहे फिर इंसान हो, सब उनके फरमा रहो, सब उनके पीछे चलने वाले हैं, उनके फरमा बरदार हैं। क्योंकि उनकी जिंदगी का जो उसवा है वो ये है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने शौहर की रजा जोई में, अल्लाह ताला और उसके रसूल की फरमा बरदारी में गुजारी थी। आ अदब परवरदाए सब्र रजा, आसिया गर्दाओ लब कुरान सरा। वो जो कि अदब
की परवरदा हैं, पैकरे सब्र व रजा हैं, जिन्होंने अदब को गोद में पाला है, रजा और सब्र को गोद में पाला हो, वो बतूल। उन्होंने चक्कियां पीसी एक तरफ और चक्कियां पीसते हुए कुरान मजीद पढ़ा है, कुरान मजीद की तिलावत के साथ चक्कियां पीसी है। यानी एक तरफ जनाबे सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर मोहतरमा है, क्या शय है जो इनको इनके पास इनके कदमों में नहीं आ सकती, मगर हासिल क्या है पूरी जिंदगी का। एक हाथ में चक्की, यानी जो दुनियावी जिंदगी है वो इस कदर, और एक आखिरत की जिंदगी है वो इस तरह की कि कुरान मजीद की भी तिलावत और चक्की भी पीस रही हैं। आज की खातून, आज की खवातीन इससे पैगाम लें कि जनाब सैयदा का मुकाम क्या है। फरमाते हैं आगे, गिरिया हाय अज ओ बाली बे नियाज, गोहर अफशान दे बदामने नमाज। उनकी गिरिया आजारी दुनियावी लज्जत और ख्वाहिशात की खातिर तो कभी थी ही नहीं। उन्होंने कभी गिरिया आजारी ख्वाहिशात के लिए, कुछ तलब के लिए कभी नहीं की। इन सब चीजों से बेनियाज थी आपकी हस्ती। हाँ, जब आंसू बहे हैं तो मुसल्ले पे बहे हैं बतूल के, जब आंसू बहे हैं तो मुसल्ले पे बहे हैं, जा नमाज पे बहे हैं, अल्लाह ताला से उम्मत को बख्शवाने में बहे हैं। अश्क ऊ बची जिब्रील अज ज़मीन, हम चू शबनम रेख्त बर अर्शे बरी। जो जमीन पर आपका आंसुए मुबारक जमीन पर पड़ता था उसको जिब्रील उठाते थे, और वो जिब्रील हम चू शबनम, शबनम के मानिंद अर्श बरी, अल्लाह ताला के अर्श पर डालते थे उस आंसू को। जो जनाब सैयदा का आंसू जमीन पर होता था उसे उठाकर अर्श बरी पर पेश करते थे और वहां छिड़कते थे। सोचिए जनाब सैयदा के आंसू का ये मुकाम कि जिब्रील खिदमत गुजारी आंसू की कर रहे हैं, तो शख्सियत और ज़ात का क्या मामला होगा, क्या मर्तबा होगा। जनाब सैयदा का मर्तबा वला ला तोहसा, इसकी कोई मतलब इसका कोई शुमार नहीं, इसका कोई इहाता नहीं हो सकता। बेशुमार फ़ज़ाइल व मनाकिब हैं आपकी। आगे फरमाते हैं, रिश्ताए आइन हक ज़ंजीर पास्त, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफ़ास्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस यहाँ तो कलम तोड़ दिया इकबाल ने। और जो अदब और जो इश्क और जो मवद्दत और जो इनकी मोहब्बत और इनका जो हुजूर अलैहिस्सलाम और आपकी आल से जो इनका लगाव था, वो इन्होंने इस पूरे अशार एक जानिब और ये आखिर के बद एक तरफ। कहते हैं अगर ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात और हदीस मुबारका और कुरान मजीद में की पाबंदियां नहीं होती मेरे साथ, यानी शरीयत की पाबंदी मेरे साथ लगी ना होती और हुजूर अलैहि सलाम के अक़वाल ज़री की पाबंदी मेरे साथ ना होती, तो ये होता वरना गर्दे तुरबतश गर्दीद में, वरना गर्द तुरबतश गर्दीद में, सजदा है बरखा के ऊ पाशीद में। उनके कब्र मुबारक जनाब सैयदा की कब्र मुबारक का तवाफ करता और आपके खाके पाक का सजदा करता इकबाल। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही व मा अलैना इल्लल बलाग, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।